Hi class 8, welcome back to chapter metals and non-metals. Now class, in the last class we were discussing about the elements, right? That every substance is made up of some elements, and elements are categorized into metals, non-metals and metalloids. So I told you that there are 92 known elements, and out of 92 we have 70 metals and rest of them are non-metals and metalloids. Now, if we talk about metals, metals are generally very hard. If you touch metals, they are very hard, right? So, the example of metals is iron and cobalt. Now, if we talk about non-metals, they are not hard. They are very soft. And in this, usually all the gases are your non-metal. जितने भी gases हैं, hydrogen, oxygen, carbon, ये सारे आपके non-metals हैं. फाइन. नाउ मेटेलॉइड्स आर द सब्सटेंस जो इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं. दैट मीन्स दे फॉलो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. So it is basically very difficult to categorize them as metals or non-metals. इसीलिए हम इनको सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं which is metalloids, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टीज को, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. और मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हमारे पास है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. फाइन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स. नाउ अब मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं. फाइन. सो मेटल्स ये वो सब्सटेंस होते हैं विच आर वेरी हार्ड. लाइक अगर आप इन्हें टच करोगे तो ये बहुत ही हार्ड होंगे एंड ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं. आई सेड यूजुअली, राइट. तो ये बहुत हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं. सेकेंडली, they are malleable. Now malleable, what is malleable? Malleable मतलब आप इन metals को sheet में convert कर सकते हो. You must have seen घर में home foil you use, aluminium foil. तो aluminium foil देखिए वो कितनी पतली होती है, sheet के form में होती है. gold की sheets होती हैं, silver की sheets होती हैं. तो ये metal, ये इस property को you call it as malleability. The property in which metals can be beaten into thin sheets. आप metals को convert कर रहे हो thin sheets पे, तो ये property को आप बोलते हो malleability. and जो इस property को show करते हैं उनको you call it as malleable. so metals ये property को follow करते हैं. that means metals को आप sheet में convert कर सकते हो, तो आप metals को बोलोगे that they are malleable. fine. now they are ductile. डक्टाइल का मतलब आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हो वायर में. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है घर पे, इफ़ यू सी यू हैव डिफरेंट वायर्स. यू हैव कॉपर वायर होती है, सिल्वर वायर होती है. फाइन. अगर आप घर पे तारे देखोगे तो वो कॉपर सिल्वर की बनी हुई होती है. एंड कॉपर सिल्वर क्या है? ये मेटल्स हैं. फाइन. सो वो प्रॉपर्टी जिसमें आप मेटल्स को चेंज कर रहे हो इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी. और जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है उनको आप डक्टाइल कहते हो. जैसे कि मेटल्स शो दिस प्रॉपर्टी, तो यूल कॉल मेटल क्या है? डक्टाइल है. सो मेलिएबिलिटी मीन्स आप शीट में कन्वर्ट कर रहे हो, डक्टिलिटी मीन्स आप इनको वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट. सो यूल कॉल देम ductile. Now lustrous. Lustre means shine. So metals are very shiny. For example, I was just showing you the spoon, right? If you see the spoon, it is very shiny. So metals usually क्या होते हैं? They are very shiny. So उस property को you'll call it as lustrous. Lustrous मतलब बहुत shiny होते हैं. Now next is they are strong, and they are very strong and have very tensile strength. That means if you look at metals को देखोगे वो बहुत hard होते हैं and वो usually solid होते हैं, right. and उनकी strength भी बहुत ज़्यादा होती है. It's not very easy to fold them or to change them into other shape. आपको उसे बहुत ज़्यादा temperature देना पड़ेगा उसमें कोई भी modification करने के लिए, right. Except sodium and potassium. Now exceptions are also there, class. Now what are exceptions? Exceptions मतलब सारे metals ये properties follow करेंगे except ये वाले दो metals. So हम कहते हैं कि बाकी सारे metals are very strong, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, क्योंकि सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल. आप उनको टच करोगे, आप you'll do this experiment when school will reopen and you'll visit your science lab. Then at that time you can do this experiment. You can actually see the sodium and potassium there. Fine. वो बहुत just don't try to touch those metals with your hand. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको कैरोसिन में डिप करके रखते हो, ठीक है. इफ़ यू टच सोडियम एंड पोटाशियम वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, दे विल नॉट बी हार्ड.
सो सोडियम एंड पोटेशियम ये हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, राइट. देन यू हैव दे आर सोनोरस. नो, सोनो मीन्स साउंड. एस फॉर सोनो, एस फॉर साउंड. सो ये क्या करते हैं मेटल्स, दे प्रोड्यूस साउंड, या साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेनेवर दे आर स्ट्रक विद समथिंग. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन पीपल विजिटिंग टेम्पल. दे विजिट टेम्पल एंड व्हेन दे स्ट्रक द बेल विद देयर हैंड, आपने देखा है वो घंटी ऐसे बजाते हैं, राइट, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट. सो मेटल्स हैव दिस tendency or ability to produce sound when they are struck with something. Fine. So that property is known as sonority. मतलब वो sound produce कर रहे हैं. Now, good conductor of heat and electricity. Class, now if you see metals होते हैं, they are very good conductor of heat and electricity. This is the reason why they are used for making wires also. Wires सारी metals की बनी हुई होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे conductor होते हैं. And this is the reason you must have seen आपकी जो घर में the utensils which you use, your frying pan and everything, उसको नीचे से coating देखना, उसके नीचे भी एक metal की coating होती है और वो metal के ही बने हुए होते हैं. आप अपने सारे vessels देख लो, सारे क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, कोई सिल्वर का होगा, कोई किसी चीज़ का होगा, राइट. वो सारे बर्तन मेटल से ही क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं. फाइन. सो दिस इज द रीजन वाई metals are used for making utensils. Now next, we have already discussed that metals are solids except mercury. Now please notice that all the metals are solids except one which is liquid in form and which is your mercury. आपने डॉक्टर के थर्मोमीटर में देखा है पीछे एक रेड कलर की बॉल होती है, that is your mercury. mercury एक इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, राइट. वो सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता, वो लिक्विड स्टेट में करता है. So these were some of the physical properties of metals. Now let us study about some physical properties of non-metal. Class, non-metals और metals are very simple. जो metals की properties हैं बस उनको opposite कर दो, वो सारी non-metal की properties हैं. For example, here you can see they are malleable, यानी कि वो आप easily उनको sheets में convert कर रहे हो. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यूजुअली ये गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, राइट. सो गैसेस और लिक्विड्स हैं तो विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम इनटू वायर और कन्वर्ट देम इनटू शीट? ऑब्वियसली नो. कोई चीज़ गैस है, आप गैस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वायर्स एंड शीट में? आप कितना भी लेबोरेटरी में आप कितना भी उसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर देने की कोशिश करो, बट आप उसको इतना परफेक्टली शीट्स एंड वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. फाइन. सो दे आर नॉट मेलिएबल. सो दे आर नॉन मेलिएबल यानी कि यू कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू शीट्स. एंड दे आर नॉन डक्टाइल. आप उनको वायर्स में भी नहीं कर सकते बिकॉज दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैशियस फॉर्म. मोस्टली दे आर गैशियस फॉर्म. नाउ लस्ट्रस. लस्ट्रस मतलब शाइनी. मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं. हैव यू सीन ऑक्सीजन शाइनिंग or hydrogen in the air shining or sorry nitrogen in the air shining? आपने देखा हाइड्रोजन ये आपके कार्बन आपके ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या ये शाइन करते हैं एयर में? नो. सो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन लस्ट्रस. ये क्या है आपके? नॉन लस्ट्रस हैं. इनमें लस्टर नहीं होता, शाइन नहीं होता. एक्सेप्ट क्लास सो क्लास ये क्या होते हैं? दे आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन. एक्सेप्ट आयोडीन. सिर्फ आयोडीन इज ओनली द नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है. इसमें येलो और थोड़ी ऑरेंज शाइन होती है. फाइन. तो एक्सेप्शन यू हैव टू रिमेंबर क्लास बिकॉज यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम वी डोंट फॉलो द कॉमन थिंग. हम लोग वो चीज़ को ज़्यादा देखते हैं जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, राइट. तो इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में यू हैव टू फोकस ऑन exceptions more, right, rather these properties. Now class, if you see, now as you can see, metals are generally very strong and they have high tensile strength. So if we see non-metal, they are not very strong. They have very low tensile strength. They have very low tensile strength. Now metals are sonorous. That means they are producing sound. Here you can see non-metals, they are non-sonorous.
They are good conductor of heat and electricity, they are bad conductor. They are not good conductor, they are generally bad conductor, except diamond and graphite. So class, diamond and graphite are the फॉर्म्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं, ये कार्बन के ही फॉर्म्स होते हैं. फाइन. सो डायमंड और ग्रेफाइट आप देखोगे ये दोनों एक ऐसे नॉन मेटल हैं, बोथ आर गुड कंडक्टर. डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो except these two, all non-metals are bad conductor of heat and electricity. Fine. Now let's talk about, they are usually solid and they are usually solid, they are generally liquid or gases. Now class, here we were discussing about the tensile strength कि ये बहुत strong होते हैं, बहुत ज़्यादा tensile strength होती है. इनकी tensile strength usually ज़्यादा नहीं होती है, but there is one more thing, इसका exception is diamond. डायमंड बहुत हार्ड होता है, इनफैक्ट वो हार्डेस्ट होता है. फाइन. सो नॉन मेटल्स में डायमंड होता है जो बहुत हार्ड होता है. यूजुअली सारे नॉन मेटल्स विल बी वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विल बी वेरी हार्ड. फाइन. सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो प्रॉपर्टीज मेटल्स फॉलो करते हैं, नॉन मेटल्स वो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं. तो एक दो एक्सेप्शंस हैं जो वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं. So this was all about the physical properties of metals and non-metals. And metals में you can give example. You have अब इसमें जनरली द क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं like why metals के एग्जाम्पल में you can write gold, silver, copper, aluminium, right? एंड नॉन मेटल के एग्जाम्पल में आपका आएगा जितने भी गैसेस हैं, यू हैव ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑल दीज आर योर नॉन मेटल. नाउ क्लास इन, अब लेट्स सी इसमें इससे रिलेटेड दे गिव सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं. फॉर एग्जांपल दिल से कि व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. क्योंकि यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स हैं. दे कैन फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी इजीली बीटन इनटू थिन शीट्स. आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. दूसरा, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है. और तीसरा, वो बहुत शाइन करते हैं, इसीलिए आप उनको यूज़ करते हो फॉर मेकिंग ज्वेलरी. नाउ अनदर क्वेश्चन विच दे कैन गिव यू इज विच दे कैन आस्क यू इज कि वाई मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. बिकॉज यू नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए सारे जो बर्तन होते हैं, सारी वायर्स वगैरह होती हैं, वो सब किसकी बनी हुई होती है, मेटल्स की बनी हुई होती हैं. जब they can ask you why the temple bell is made up of metal, because metals are sonorous. So you just have to remember the properties कि metals की क्या properties होती हैं, वही उसी का application they can ask you कि यहाँ पे metal क्यों use होता है. तो if you are aware of the properties, it will be very easy for you to answer them. Fine. So this was about metals and non-metals. So class, hope you're clear with all the properties of metals and non-metals, right? So now let's move on to some of the chemical properties of metals and non-metals.